Hi guys, welcome to my YouTube channel Science Classes by Diksha Jain. This is Diksha ma'am here, and in this video I'm going to discuss about respiration in different animals. We have already discussed about respiration in case of plants and what is respiration, what is the relationship between ADP and ATP. If you have not watched those videos, I'll put on a card here, and in this video I'm continuing with respiration in animals. Well, let's see. First of all, under respiration in animals, we are given that animals have evolved different organs for uptake of oxygen from environment and for getting rid of carbon dioxide produced. Plants के comparison में animals जो है वो complex organisms है. And complex का मतलब क्या होता है? Complexity का मतलब ये है कि उनके बॉडी में टिश्यू लेवल से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन है. जैसे सेल से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज मिलके ऑर्गन्स फॉर्म करते हैं, ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम्स फॉर्म करते हैं. इन केस ऑफ एनिमल्स हम लोग का जो लेवल है ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो प्लांट से कंपैरेटिवली काफी ज्यादा है. तो एनिमल्स में इन जनरल कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स हैं डिफरेंट एनिमल्स में जो डिफरेंट वेज में रेस्पिरेशन करने में या एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने में हेल्प करते हैं. इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स अगर हम देखें या किसी भी टेरेस्ट्रियल एनिमल की अगर बात करें जो लैंड पे रहते हैं तो उनके पास लंग्स है. यू हैव डेफिनेटली हर्ड ऑफ लंग्स. लंग्स जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने में हेल्प करता है. बट दोज एनिमल्स विच लिव इन वाटर उनके पास डिफरेंट मेथड्स है. एंड वो कहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं? ऑक्सीजन तो डायरेक्टली वाटर में नहीं मिलता, तो वो डिसॉल्व फॉर्म में जो ऑक्सीजन होता है वाटर में वही वो यूज करते हैं. Am I clear to you? So basically we are given the terrestrial animals can breathe the oxygen present in the atmosphere directly and give out carbon dioxide directly. But in animals that live in water, they need to use oxygen dissolved in water. And they also release carbon dioxide which comes out in the water and stays in dissolved form. ठीक है? Okay, so let's check out different animals, how exchange of gases takes place in them. In first case, we are given about fishes. Fishes के पास एक special structure है जिसको बोलते हैं gills. They exchange the gases or respire through gills. ये कैसे होता है? हमेशा फिश कुछ टाइम इंटरवल में माउथ को ओपन करती है. जैसे ही माउथ को ओपन करती है, वाटर रशेस इनसाइड देयर माउथ. As soon as the water rushes inside their mouth, it passes through the gills and जो भी ऑक्सीजन होता है वो गिल्स में ट्रैप हो जाता है. ठीक है? And rest of the water containing no oxygen or very little oxygen that is not required and carbon dioxide, it is moved out in the water surrounding back. Am I clear to you? So basically in fishes, when respiration takes place, exchange of gases takes place through gills. Water is taken inside the body of the fish through the mouth. Then this water is sent to the gills. The gills, while moving it outside, traps oxygen present in the water. And then the rest of the water flows out. And the oxygen is used for respiration process. But जो amount of oxygen intake होता है during this particular time, ये बहुत ही कम होता है क्योंकि वाटर में अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज मच 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 लेसर देन इन कंपैरिजन टू अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन नॉर्मल एटमॉस्फेयर. तो इस केस में इसको कॉम्पेंसेट करने के लिए क्या करेंगे? इसको कॉम्पेंसेट करने के लिए सारे एक्वाटिक एनिमल्स जो होते हैं ये बहुत ज्यादा उनका रेट ऑफ ब्रीदिंग होता है. जो हम नॉर्मल एनिमल्स में है उनसे बहुत ज्यादा टाइम वो ब्रीथ करते हैं सो दैट उनका ऑक्सीजन कंटेंट जो है वो मेंटेन रहे बॉडी के अंदर. ठीक है? See, here we are given that fishes take in water through mouth and force it past their gills, where the dissolved oxygen is taken up by blood. Since the amount of dissolved oxygen is fairly low compared to the amount of oxygen in air, the rate of breathing in aquatic organisms is much faster than that seen in terrestrial organisms. So I hope you understood how respiration takes place in case of fishes. Now let's move on to the next part, that is respiratory system in human beings. In case of human beings, when we talk of respiration, there is a set of organ system जो आपके लिए काम करता है for exchange of gases specially. फिर उस gases को transport करते हैं to different cells and tissues. फिर cells and tissues में उनका utilization होता है. तो आपको ये याद रखना है कि हमारे बॉडी में
एक पूरा ऑर्गन सिस्टम है जो हमारे लिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस में ही केवल हेल्प करता है, और उसके बाद उन गैसेस को हम डिफरेंट जगह पे ट्रांसपोर्ट करते हैं जहां पे रिक्वायर्ड है, वैसे टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, एंड फिर उसके बाद में हम उसे यूटिलाइज करते हैं। well, let's see कि रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे बॉडी में कैसा दिखता है। तो अपने को पता है कि नोज से ही हम एयर ब्रीद इन करते हैं और ब्रीद आउट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है वो है नॉस्ट्रल्स। ये दो नॉस्ट्रल्स क्या है? ये दो ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनके थ्रू एयर अंदर के तरफ मूव हो सकता है बॉडी के। जैसे आप नॉस्ट्रल से अंदर की तरफ जाओगे, एक चैम्बर जैसा स्ट्रक्चर है, देखिए यहाँ पे पर्पल कलर का है, एक चैम्बर जैसा स्ट्रक्चर है। इस चैम्बर को हम बोलते हैं नेजल चैम्बर और नेजल कैविटी। यहाँ पे एयर जाता है, जैसे आप नॉस्ट्रल से एयर लेते हो वो जाके सीधा नेजल कैविटी में पहुंच जाता है। आपको याद रखना है कि नॉस्ट्रल्स में ये जो नेजल पैसेज है यहाँ पे, इसमें बहुत सारे हेयर और म्यूकस लाइनिंग है, जिसके वजह से थोड़ा जो डस्ट या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या अनवांटेड पार्टिकल्स अगर आपके बॉडी में एंटर कर जाता है व्हाइल यू आर अबाउट टू टेक इन ऑक्सीजन और अदर एयर गैसेस, तो उस समय पे वो फिल्टर हो जाता है। देन फ्रॉम हियर थ्रू द नेजल कैविटी the air rushes into the pharynx. Pharynx, remember, is a common path for both air as well as food. ये देखिए, ये आपका माउथ है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम फेरिंग्स में दोनों एक ही जगह पे होते हैं। बट फेरिंग्स जो है, इससे इट लीड्स टू द अदर पार्ट दैट इज कॉल्ड लैरिंग्स। अभी फेरिंग्स में आपको याद रखना है कि जस्ट लैरिंग्स के ऊपर ऊपर वहां पे एक फ्लैप जैसा स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। ठीक है, ईसोफेगस और जो अपना विंड पाइप है, जो अपना रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, वो दोनों काफी एक दूसरे से ऐसे क्लोजली एसोसिएटेड है। तो जब एक ओपन रहता है दूसरे को क्लोज कर देते हैं। जब आप फूड इंटेक कर रहे होते हो, जब आपकी बॉडी में फूड जा रही होती है, अगर फूड गलती से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पहुंच जाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए उसको प्रिवेंट करने के लिए एक फ्लैप जैसा स्ट्रक्चर है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को कवर कर देता है while the food moves inside the body, and that flap like structure is called epiglottis. क्या बोलेंगे? epiglottis. कहाँ प्रेजेंट है ये देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको। दिस इज एपिग्लॉटिस। ये अपना एयर का पैसेज है और यहाँ पे ये फूड मूवमेंट को रोक रहा है। तो जब आप खा रहे होते हो तो जनरली विंड पाइप बंद हो जाता है, फूड इजीली अंदर जाता है। जब आप नहीं खा रहे होते हो वो एपिग्लॉटिस ओपन रहता है। ठीक है, तो as soon as the food moves through pharynx, it reaches larynx. What is larynx? It is also called the voice box. Voice box के बारे में तो आप जानते होंगे। Voice box के थ्रू हमारी वॉइस निकल के आती है। Just right here, the larynx is present. Then from here, neck region में ही एक्सटेंड होते हुए ट्रैकिया फॉर्म होता है, जिसको हम विंड पाइप बोलते हैं कॉमनली। ट्रैकिया जो है, ये एक स्ट्रक्चर है जो फर्दर चेस्ट कैविटी तक डिवाइड हो जाता है इनटू टू, and the two branches are called bronchi. In singular it is called bronchus. तो of course दो साइड है, एक लेफ्ट पार्ट और एक राइट पार्ट। तो आपको याद रखना है कि आपके राइट साइड जब भी आप ड्रॉ करोगे या जब भी आप पढ़ोगे, तो मेरे राइट साइड में मैं लेफ्ट को लेबल कर रही हूँ। क्यों? बिकॉज इस ह्यूमन बॉडी का लेफ्ट पार्ट ही है ना ये। हमारा जो राइट साइड है वो आपके किसी भी ऑपोजिट जो सामने आदमी खड़ा है उसका वो लेफ्ट साइड होगा। तो वो लेफ्ट साइड है सिंस, इसीलिए हम उल्टे साइड में राइट की जगह लेफ्ट और लेफ्ट की जगह राइट लिखते हैं, बिकॉज हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, अपने आप को ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रोंकी एंड राइट पार्ट ऑफ द ब्रोंकी, ये दोनों टर्मिनेट हो जाते हैं इनटू टू बैग लाइक स्ट्रक्चर्स, एंड दीज टू बैग लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड lungs. Inside the lungs, the bronchi, they keep on dividing into smaller branches which are called bronchioles, and the bronchioles also further keep on dividing, forming small tiny balloon like structures, and those structures are called alveoli. alveoli क्या है और डिटेल्स में हम पढ़ेंगे, पर यहाँ पे आपको याद रखना है कि लंग्स जो है वो एक मसल फ्लैप के ऊपर रेस्ट करता है। ये मसल को हम बोलते हैं डायफ्राम। ये जो डायफ्राम है ये आपके बॉडी की थोरैसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट रखता है। नाउ व्हाट इज थोरैसिक कैविटी?
ये जो अपर पार्ट है बॉडी की अबव द डायफ्राग्राम इज कॉल्ड द थोरैक्स पार्ट ऑफ द बॉडी. इसके नीचे में जो है इट इज कॉल्ड द एब्डोमेन पार्ट ऑफ द बॉडी. तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ लाई करता है? इन द थोरैसिक कैविटी ऑफ द बॉडी. याद रहेगा आपको. एंड सराउंडिंग देम कुछ फ्लूइड है, रिब केज है, जो लंग्स को कंटिन्यूअसली प्रोटेक्ट करके रखते हैं. ठीक है. तो बेसिकली व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम? First it starts from nostril, then there is nasal cavity, then from nasal cavity there is pharynx, then there is larynx, then there is windpipe or the trachea, then from the trachea there are two different bronchi, and after the bronchi there are lungs, and inside the lungs there are branches called bronchioles, and the bronchioles terminate into very small minute balloon like structures, and those structures are called alveoli. ठीक है. Diaphragm is not a part of respiratory system, but it helps in breathing. It helps in exchange of gases. इनका क्या रोल है? We will study that. So I hope आपको समझ में आया है entire structure respiratory system की. So let's move on to the next part. And there are some important points given about the respiratory system. First is that the nasal passages are lined by ciliated epithelium and mucus secreting cells. मैंने आपको बोला था कि जैसे ही नॉस्ट्रल से एयर एंटर करेगा, जब नेजल पैसेज में पहुंचेगा तो वहां पे बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनको आप सीलिया बोल सकते हो, एंड म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स है. ये सीलिया और म्यूकस सिक्रीटिंग सेल किसी भी डस्ट पार्टिकल की एंट्री को रोकता है एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एंट्री को भी रोकता है. In next part, we are given that while swallowing the food, the glottis gets covered by small cartilaginous flap of skin called epiglottis. This epiglottis prevents food or water from entering into the respiratory tract. This we have already discussed. कि epiglottis आपके glottis को cover करता है. Glottis मतलब pharynx को cover करता है, so that food directly या water directly respiratory tract में enter ना हो जाए while you are taking in your food. Next, we are given that the wall of trachea is provided with incomplete C-shaped cartilaginous rings. ये हमने already देखा. आप अगर ठीक से डायग्राम को चेक करोगे तो वहां पे देखिए, ये देखिए बहुत सारा ऐसा कार्टिलेजिनस रिंग जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा. ये सी शेप के हैं पर कंप्लीटली सी भी नहीं है. ये जो है ये एक्चुअली क्या प्रोवाइड करते हैं? ये स्पेस प्रोवाइड करते हैं, ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं टू द ट्रैकिया, सो दैट अगर एयर नहीं भी है फॉर द टाइम, सफिशिएंट एयर अगर नहीं भी है तो वो जो पाइप है विंड पाइप वो कोलैप्स ना हो जाए. अगर कोई भी पाइप में आप अगर एयर नहीं रखोगे या वाटर नहीं रखोगे तो वो श्रिंक हो जाएगा, पर वैसा होना हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है. तो इवन इफ द टाइम जब एयर कम होगा बॉडी में, तो ये जो स्ट्रक्चर है, जो कार्टिलेजिनस रिंग्स है, ये प्रिवेंट करता है कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकिया फ्रॉम एनी डैमेज. Okay. Then in last part we are given that trachea is lined internally by ciliated epithelium and mucus secreting cells. जो ट्रैकिया है उसमें भी ciliated epithelium and mucus secreting cell है, और ये भी चेक करता है वेदर कोई डस्ट पार्टिकल या कोई भी माइक्रोब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर ना करे. Well, in the next part we are given what are alveoli. मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है that alveoli are minute structures found inside the lungs. But इतना क्यों फोकस कर रहे हैं इनके ऊपर? फोकस इसलिए कर रहे हैं because these are the main functional units of lungs. इनके बिना काम नहीं हो पाएगा भैया. तो कैसे काम होगा? एल्वियोली जो है वो गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करके देता है. यही वो एजेंट है जो ऑक्सीजन आपको प्रोवाइड करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड आपके सेल्स के थ्रू लेके जाएगा. और इनका नंबर जो है वो हमारे लंग्स में बहुत बहुत ज्यादा है. इनका नंबर इज अबाउट 750 मिलियन इनसाइड द लंग्स. और बिकॉज ऑफ दैट दिस बैग लाइक स्ट्रक्चर्स एज यू कैन सी इन द डायग्राम, ये बहुत ह्यूज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एंड दैट इज नियरली 80 स्क्वायर मीटर्स. इतना ज्यादा सरफेस एरिया हमारी बॉडी का भी नहीं है. हमारी बॉडी के कंप्लीट सरफेस एरिया से मेनी टाइम्स मोर सरफेस एरिया ये प्रोवाइड करता है हमारे लंग्स के इनसाइड, सो दैट वी कैन इजीली एक्सचेंज दी गैसेस. एंड अगर आप इस डायग्राम को ठीक से देखो तो ये जो रेड वाली लाइन दिख रही है यहाँ पे, ये एक्चुअली आर्टरीज डिनोट कर रही है, एंड ये जो ब्लू पार्ट दिख रही है ये वेन्स डिनोट कर रही है. तो यहाँ पे आके आर्टरीज एंड वेन्स डिवाइड होते हैं, और बहुत सारे ऐसे देखो वेब लाइक कैपिलरीज, इनको कैपिलरीज बोलते हैं, वेब लाइक टाइनी स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो जाते हैं.
एंड थ्रू कैपिलरीज एल्वियोली का गैसेस एक्सचेंज होता है। कैपिलरीज कार्बन डाइऑक्साइड लेके आती हैं, एल्वियोली में ऑलरेडी बाहर से आया हुआ गैस होता है और उससे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। रिमेंबर कि जब हम एयर लेते हैं इनर साइड में हमारे बॉडी के, तो वो डायरेक्टली थ्रू द विंड पाइप हमारे लंग्स के अंदर एल्वियोली के पास ही जाता है एंड फिर एल्वियोली से ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। Between what? Between alveoli and the capillaries surrounding the alveoli. So basically alveoli are the functional unit of lungs and are the actual site of respiratory exchange. Here we are given again that there are about 750 million alveoli present in lungs, which have a total surface area of 80 square meters, and alveoli are covered with network of capillaries. Well, in the next part we are given कि आपका breathing होगा कैसे, how the breathing will take place. तो यहाँ पे अपने को दिया है कि breathing जो है वो दो different processes में divided है, एक है inhalation and second है exhalation. Inhale करना और exhale करना. Inhale करने में आप क्या करते हो? Inhale में basically you take the gases inside your body. And what is exhalation? In this process you take the gases or remove the gases outside from your body. Well, when I talk of this, तो हमारे दो मेजर पार्ट्स काम करते हैं, एक है मसल्स दैट आर अटैच्ड टू द रिब्स एंड द डायफ्राम. ये दोनों ही पार्ट बहुत ज्यादा काम करेंगे. तो कैसे करेंगे? अब एयर कब अंदर जाएगा? जब अंदर में प्रेशर कम होगा और बाहर में प्रेशर ज्यादा होगा. अंदर में बॉडी के अंदर कैसे प्रेशर क्रिएट करेंगे? लो प्रेशर क्रिएट करेंगे. कैसे करेंगे? डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा. जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा, देखिए ये यहाँ पे नॉर्मल पोजीशन पे है, ये यहाँ से थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव होगा. जैसे ही डायफ्राम नीचे की तरफ मूव होगा, कैविटी का साइज थोड़ा बढ़ जाएगा. इन टर्न क्या होगा? चेस्ट भी जो है वो एक्सपैंड होगा आगे की तरफ, क्योंकि रिब्स जो है उनके मसल्स भी बाहर की तरफ मूव होंगे. जैसे ही ये होगा, चेस्ट कैविटी का साइज बढ़ेगा, वैसे ही अंदर में प्रेशर लो होगा गैसेस का. एज सून एज ये होगा, बाहर की प्रेशर इंक्रीज होगी गैस की और अंदर कम होगी, तो एयर विल रश इनसाइड द लंग्स. समझ में आया? एंड इसी के संग बहुत सारा गैसेस आपकी बॉडी के अंदर जाएगा. तो बेसिकली ब्रीद इन करते टाइम आपको याद रखना है कि आपके रिब के मसल्स एंड डायफ्राम जो है इनका मूवमेंट होता है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड चेस्ट कैविटी की साइज जो है वो इंक्रीज हो जाती है. जैसे ही वो इंक्रीज होती है, बाहर से एयर रश होके ऑन द इनर साइड अपने आप आती है एंड इसीलिए इनहेलेशन के टाइम आपका जनरली जो चेस्ट है वो एक्सपैंड होके थोड़ा आगे आता है. बट क्या होता है जब आप ब्रीथ आउट करते हो या जब आपको एक्सेल करना होता है, अपोजिट होता है. डायफ्राम नाउ रिलैक्सेस. जब रिलैक्स करेगा तो डायफ्राम ऊपर की तरफ पुश हो जाएगा एंड चेस्ट कैविटी के जो रिब्स है वो भी ऑन द इनर साइड, उनका मसल्स एंड उनका जो बोन्स है वहां पे वो थोड़ा अंदर मूव करेंगे. जैसे ये मूवमेंट होगा, अब क्या होगा? द लंग्स विल गेट कॉम्प्रेस्ड. अभी जगह कम हो गया, कैविटी का साइज कम हो गया. तो जैसे ही कम हो गया तो अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और बाहर में कंपैरेटिवली प्रेशर होगा कम. तो जैसे ही ऐसा सिचुएशन आएगा तो क्या होगा? आपकी लंग्स जो है वो ऑटोमेटिकली कुछ गैसेस बाहर की तरफ रिलीज कर देंगी और उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्सहेलेशन. So basically remember, in case of inhalation and exhalation there is nothing difficult. सिर्फ ribs का movement, ribs के muscles का movement and diaphragm का movement जो है वो chest cavity का size increase करता है during the time of inhalation and decrease करता है during the time of exhalation. जब आपका inhalation होता है तो अंदर में pressure low हो जाता है inside the lungs compared to outside. And because of low pressure of gases inside the lungs, air rushes inside. But जैसे ही area कम होता है during exhalation, the pressure inside the lungs increases. In turn, the gases move out of the body. Am I clear to you? So this is the mechanism of breathing. अब हमने ये डिस्कस कर लिया कि जब आप ब्रीथ करोगे तो डेफिनेटली क्या होगा? The air rushes into the lungs. lungs में जाना मतलब कहाँ पहुंचेगा? ब्रोंकी में गया है डेफिनेटली, फिर ब्रोंकियोल्स में गया है, फिर ब्रोंकियोल्स में जाने के बाद वो कहाँ पहुंच गया? इन दी एल्वियोली. एंड जैसे ही एल्वियोली में पहुंचेगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस विल टेक प्लेस. तभी ना आप एक्सेल करोगे, पहले आप गैसेस एक्सचेंज करोगे फिर आप एक्सेल करोगे. तो गैसेस एक्सचेंज कैसे होगा? ये देखिए,
ये जो है ये एल्वियोली है। डायग्राम को ठीक से देखिएगा, ये जो है ये एल्वियोली है। आप देख सकते हो कि इसका जो वॉल है वो भी बहुत थिन है, वॉल पे एक एक सेल दिख रहा है, तो ये 1 सेल थिक स्ट्रक्चर है। सिमिलरली यहाँ पे जो ऑन दी अदर साइड ये जो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बना है, इसको आप कैपिलरीज बोलोगे। कैपिलरीज की वॉल भी अगर आप देखो तो यहाँ पे भी 1 सेल थिक स्ट्रक्चर है। सो बेसिकली 1 सेल का गैप रहता है बिटवीन द कैपिलरीज एंड द एल्वियोली, तो यहाँ पे इसीलिए डिफ्यूजन इजी है। अब होगा क्या कि ब्लड थ्रू कैपिलरीज तो वेन्स के थ्रू आएगी और डिफरेंट पार्ट से ट्रैवल करके आएगी, तो उनके पास ऑक्सीजन नहीं रहेगा, बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा इन अदर टर्म्स। बट एल्वियोली में फ्रेश एयर आया है तो उसमें बहुत सारा ऑक्सीजन रहेगा। तो क्या होगा, जैसे ही कैपिलरीज एल्वियोली के पास आएगी तो वहां देखेगी कि यहाँ तो बहुत सारा ऑक्सीजन है एंड कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट कम है। So in turn, the carbon dioxide will tend to move from its higher concentration level to its lower concentration level by the process of diffusion. Now, where the concentration is high in the capillary side and it is low in the alveoli side. So capillary से alveoli की तरफ the carbon dioxide will rush. But in turn, what will happen? It will happen कि oxygen is present in larger amount inside the alveoli. And outside the alveoli, capillaries में ऑक्सीजन का कंटेंट बहुत बहुत कम होगा comparatively. तो ऑक्सीजन now will rush from inside the alveoli into the capillaries, making the blood oxygenated, or it makes the blood rich in oxygen. फिर यही ब्लड जो है थ्रू कैपिलरीज इट मूव्स टू द आर्टरीज एंड फिर उधर से वो वापस मूवमेंट करेगा थ्रू आउट द बॉडी। जब पूरे बॉडी में ट्रैवल करेगा तो फिर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, सेल्स में, टिश्यू में गैसेस का एक्सचेंज होगा एंड फिर एक्सचेंज के बाद में वो ऑटोमेटिकली वापस से बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करके वापस उसको लंग्स के पास में लेके आएगा अंटिल द टाइम, रिमेंबर अंटिल द टाइम आप एक बार ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करो। सो द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज इज ऑल्सो वेरी रैपिड एंड टाइम जो है वो भी बहुत कम लगता है इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बट रिमेंबर अल्टीमेट एक्सचेंज ऑफ गैस जो होता है हमारे जैसे कम्प्लेक्स बॉडी में भी, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। बट सिर्फ डिफ्यूजन हमारे लिए करना पॉसिबल नहीं है, उसके थ्रू हमारा सेटिस्फैक्शन नहीं होगा ऑक्सीजन लेवल का। इसीलिए हमारे पास एडिशन टू एक्सचेंज ऑफ गैसेस डिफ्यूजन हमारे पास एक और मेथड है, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। See, here we are given that exchange of respiratory gases occurs between blood and tissue. In the tissue, oxygen gets used up and carbon dioxide is released. The blood which brings oxygen from the lungs takes it to the tissues and has high concentration of oxygen and lower concentration of carbon dioxide. Due to difference in the concentration, the gases gets exchanged between tissues and blood capillaries. तो I hope आपको ये समझ में आ गया है। एंड यहाँ पे दिया है कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, सिंपल है। इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आप जानते हो ऑक्सीजन कैरी करने के लिए हमारे पास स्पेशल सेल्स है, उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स। एंड रेड ब्लड सेल्स में ऐसा क्या है जो ऑक्सीजन कैरी कर सकता है, उसमें एक पिगमेंट है जो रेड कलर का है। क्या है वो पिगमेंट, वो पिगमेंट है हीमोग्लोबिन। सो हीमोग्लोबिन बेसिकली इट हेल्प्स इन movement of oxygen through blood across the body. And Q because it has very high affinity for oxygen, उसको ऑक्सीजन बहुत ज्यादा पसंद है, तो जैसे ही वो ऑक्सीजन को देखता है उसकी टेंडेंसी हो जाती है ऐसी कि वो बाइंड करने को बाउंड हो जाता है। तो जैसे ही वो बाउंड करता है ऑक्सीजन के संग, तो एल्वियोली के पास जब जाता है तो वहाँ काफी सारे ऑक्सीजन होते हैं, तो बहुत सारे हीमोग्लोबिन कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन के संग बाइंड हो जाते हैं एंड फिर वो रेड ब्लड सेल्स उनको ले लेके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाते हैं। जब आप डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के पास पहुंचते हो जहाँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कम होता है, तो वहां पे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से डिटैच हो जाती है और फिर ऑक्सीजन आपके सेल्स या टिश्यू को मिल जाता है। बट व्हाट अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड इन जनरल हीमोग्लोबिन के थ्रू ट्रांसपोर्ट नहीं होता, कुछ पार्ट होता है बट मैक्सिमम पार्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड का वो थ्रू प्लाज्मा ही ट्रांसपोर्ट होता है। Now, I hope what is plasma, you know that. What is plasma? Blood में जो fluid component है other than the cells, उस fluid component को आप plasma बोलते हो। तो वो dissolved form में plasma में या बोल सकते हो water में dissolve होके
easily one part of the other part में move हो जाता है. So basically you need to remember that for transportation of respiratory gases in our body, in case of oxygen if we talk, we need hemoglobin, but for carbon dioxide we have plasma, which carbon dioxide easily dissolves in plasma, and through that it gets transported across the body. So आज हमने क्या पढ़ लिया? आज हमने respiratory in different animals complete कर लिए हैं. Respiration मेरे साइड से अभी complete है. हमने ऑलरेडी फिशेस के रेस्पिरेशन पे डिस्कस कर लिया है, ह्यूमन बीइंग्स के रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ा, एल्वियोली क्या है वो पढ़ा, एंड इसके बाद में हमने क्या पढ़ा कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस कैसे होगा. रिमेंबर, अगर आपको कभी भी कोई भी पूछे कि डिफ्यूजन इज इट द अल्टीमेट वे ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो यस इट इज द अल्टीमेट वे. बट अगर कोई पूछे इज ओनली डिफ्यूजन सफिशिएंट फॉर यू, तो no, only diffusion is not sufficient for higher organisms like us or complex organisms like us. What is the reason? Because all the body cells are not directly exposed to the outer environment and direct diffusion possible nahi hai. तो इसीलिए transportation plays a very important role. Without transportation हमारे body में only diffusion cannot work. Am I clear to you? So रेस्पिरेशन हमारा इससे कंप्लीट हो गया है. इन नेक्स्ट वीडियो आई विल कंटिन्यू विद ट्रांसपोर्टेशन. Now, if you like my videos, please hit the like button, share it with your friends, and subscribe my channel. Okay, tata.